Good morning, one and all. Today is 18th June 2021 and we'll be beginning with shell programming. We do programming in Linux operating system that is called as shell programming. So like we do C programming, C++ programming, Java programming जैसे करते हैं वैसी shell की programming करते हैं. तो shell programming करके we can create our own commands. So the statement to read the information from the user is read command. जो statement input statement है that is to read the information from the user. For that the command is read and variable name directly. यहाँ शेल जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो कोई हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पे भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं. प्रॉम्प्ट पे लिखने से क्या होता है कि ओनली वन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एंड यू कैन एग्जीक्यूट ओनली दैट सिंगल स्टेटमेंट. तो शेल में जो है वो एज इट इज कोई एक्सेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. आप जो अपनी इनबिल्ट कमांड्स हैं, इनबिल्ट फिल्टर्स हैं, पाइप्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हुई हैं उनको आप डायरेक्टली एक फाइल के अंदर लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी एडिटर पे लिख के. उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम शेल पे एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इसको शेल प्रोग्रामिंग कहते हैं. तो जो स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट है, the statement which is used to read the value from the user, that is called as input statement. So the input statement is read. कैसे लिखेंगे? read followed by one space and the variable name. okay, read के बाद में एक space और variable name. तो suppose अगर मुझे a वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना है तो I'll write read a. So it waits for me to enter the value of a. कोई भी आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी एंटर कर सकते हो. Okay. So the statement to read the value is read and the statement to print the value is echo. Echo के साथ में अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है to display the output statement is echo. Echo is the statement which prints the message on the screen. Value of a is as it is, the message will be printed and the variable value will be printed like this. See, we have read the value in a variable as Suhashni. So echo $a will give you Suhashni. तो वेरिएबल के पहले डॉलर साइन लगाना है. अगर वेरिएबल के पहले डॉलर साइन लगाया तो वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा. ठीक है. सो कांस्टेंट स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना है तो आप सिंगल कोट, डबल कोट कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. इको डबल कोट, ठीक है, बिना कोट्स के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सिंगल कोट, डबल कोट, पर यू शुड फॉलो एटलीस्ट यूज सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज करो ताकि आपको पता चले दैट वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट प्रिंटिंग ऑन द screen. So to read the value we have read statement, to print the message on the screen we have echo statement. So now I'll write a shell program called as add insert. I'll print the message echo, enter first number, read a, echo, enter second number, read b. Okay. Echo a is equal to $a and b is equal to $b. So what it will do, it will print the value of a is equal to, ये मैसेज एज इट इज दिखाएगा, $a की जगह a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा, एंड b ये एज इट इज दिखाई देगा इज इक्वल टू, और $b की जगह क्या दिखाई देगा, $b will be replaced by the value of the b variable. We'll save the program, wq, save and quit, and then execute it using sh add first number 2, second number 3, and it will print the value of a and b like this. समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ मैम, हाँ मैम. Okay, let's continue the same program. Vi add. Okay.
insert mode, and then you can type here sum is equal to EXPR $A plus $B, and you can print the value of sum also, echo sum equal to $sum. Sh add first number 3, second number 2, and you get the number as 3 plus 2. Why? You are getting it as a string value. Now to add two numbers, what we have to do, we have to write the expression sum is equal to EXPR, one space, then $A. $A means the value of the variable. One space here, you have to give space before and after the plus sign. Plus sign के पहले और बाद में आपको एक space देनी है. तो $A plus $B, तो दोनों को ये ऐड करेगा A और B को, और जो भी आंसर आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा, और सम वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी. तो यहाँ पर प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया वहां स्पेस देना है. $A जो है वो वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करेगा, $B जो है वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करेगा, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो आपको EXPR के साथ में इसको यूज करना है. EXPR, और ये ग्रेव एसेंट लगाना है. देखो ये जो ग्रेव एसेंट रहता है वो ये देखो सिंगल कोट के जैसा दिखता है, सिंगल कोट नहीं है, ये ग्रेव एसेंट बोलते हैं इसको, थोड़ा सा टिल्ड सा कोट है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है. सम के अंदर इनका प्लस एडिशन स्टोर हो जाएगा, और सम को हमने प्रिंट कर दिया $सम लगा के. तो जब सम पहली बार यूज होगा उसमें कुछ वैल्यू असाइन होगी. देखो जो पहली बार यूज हो रहा है ये, तो ये डायरेक्टली वेरिएबल में या कैलकुलेशन में इस तरह से यूज हो रहा है, तो ये विदाउट डॉलर यूज करना है. और जब इसको हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब हमको उसको $साइन लगाना है. Escape WQ, save and quit. sh शेल की एग्जीक्यूटेबल फाइल बैश शेल है, बैश शेल की एग्जीक्यूटेबल फाइल sh है, और ऐड किया तो क्या करेगा, ये दो नंबर्स को ऐड करेगा. 2 6, 2 + 6 8. सिमिलरली हमने ये एडिशन परफॉर्म किया, हम यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं. डिफरेंस इज इक्वल टू EXPR $A minus $B को ग्रेव एसेंट क्लोज, ठीक है. then multiplication, division is equal to single quote EXPR $A slash $B. ओके, अब हम यहाँ पे सम को प्रिंट करेंगे. echo difference is equal to $difference, echo division is equal to $div. ठीक है, तो ये सम के लिए हमने इन दोनों नंबर को प्लस किया, माइनस के लिए $A माइनस $B. EXPR के साथ लिखना जरूरी है एक्सप्रेशन, बिना इसके ये वर्क नहीं करेगा. देन diff EXPR slash is used to divide the first value by second. यहाँ पर @ की जगह $, आएगा. ठीक है, sh add फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर. सम कितना आया 3, डिफरेंस 1 - 2 3, 1 - 2 is -1, and divide 1 divided by 2, 1 divided by 2 will be 0. क्यों, इंटीजर डिवीजन लेगा. तो मैं यहाँ पे नंबर कुछ और ले लेती हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए. सपोज 4 और 2, ठीक है. 4 + 2 6, 4 - 2 2, and 4 divided by 2 2. So this is, we have calculated we have seen the expression EXPR to calculate the arithmetic operations. Multiplication भी ले लेते हैं. Insert
MUL multiply is equal to EXPR $A star $B. Now this will not work. $A star $B ये वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो स्टार है उसका जो यूजुअल मीनिंग है उसको वो रिप्लेस कर देगा. तो इसके पहले क्या लगाना, स्टार के पहले बैक स्लैश लगा देना. अगर स्टार के पहले बैक स्लैश लगा दिया तो ये जो है वो स्टार अपना मीनिंग जो है वो प्रिजर्व करके रखेगा. इसका मीनिंग प्रिजर्व करके रखेगा. ये स्टार का जो मीनिंग है उसका मीनिंग प्रिजर्व करके रखने के लिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करने के लिए उसके पहले बैक स्लैश लगा दिया. सच ऐड ये सिंटैक्स में ही है इसलिए मैंने लिखा है 6 2 मल्टीप्लिकेशन 6 2 जा 12 प्लस 6 plus 2 8 difference 6 minus 2 4 divide 6 divided by 2 3 multiply 6 into 2 12. So this is the program which is used to, this is the shell program which takes two values, add, subtract, divide, multiply and print the values. Now did you understand this problem? ये shell समझ में आ गया? इसमें कहीं हेडर नहीं लिखा, कुछ मेन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली स्टेटमेंट्स लिखिए. रीड स्टेटमेंट यूजर से रीड करने के लिए और प्रिंट स्टेटमेंट, इको स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन. और जो हम स्टेटमेंट जैसे यूज करते थे वैसे, जहां पर भी थोड़ा सा टेक्निकल में आता है वहां पर उसका हेल्प मैनुअल देख लेना चाहिए. नाउ लेट्स से अनदर प्रोग्राम vi intro. इको what is your name, read name. echo hello $name. echo enter the codes. read codes. echo $name is enrolled for $codes. ठीक है, डॉलर लगाया तो नेम का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा डॉलर नेम करने से. ये कोर्स का वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. sh intro, what is your name, सुहासिनी, कोर्स BSc. ठीक है, सुहासिनी इज एनरोल्ड फॉर BSc. समझ में आई है? ये शेल देखो, डायरेक्टली सिर्फ echo and read, only these statements are available in the shell. सिर्फ echo और read statement available है shell में, और कुछ भी नहीं है. Did you understand this? समझ में आया? हाँ मैम. ये सिंगल कोट देखो, यहाँ पर सिंगल कोट और ग्रे वेसेंट ये फर्क है. ये सिंगल कोट है और ये ग्रे वेसेंट है. ये देखो टेढ़ा आता है, ग्रे वेसेंट टेढ़ा सा रहेगा, सिंगल कोट ऐसा रहेगा. इसको देखकर आप एंटर करना. ठीक है, so we have seen two shell programming. इन दोनों को आप करके देखना. Enter two numbers and find the average of these two. vi evg insert, बताओ, दो नंबर एंटर करना है and we need to get the average. echo enter two numbers, read a b. ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हो. एक स्पेस देना है, कॉमा नहीं लिखना है. रीड ए कॉमा बी नहीं लिखना है, रीड ए स्पेस बी. तो ये दो वेरिएबल्स ट्रीट होंगे. अब इनको प्लस करना है. प्लस करने के लिए सम इज इक्वल टू ग्रेविसेंट EXPR $A प्लस
$B Gravison close, and then average AVG is equal to EXPR. जब भी हमको अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो EXPR के साथ ही करना है. Sum divided by 2 and equal print the average. Print average. $AVG. AVG की वैल्यू को प्रिंट कर दिए, वेरिएबल की वैल्यू को SH AVG. फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर एरर दे दिया लाइन नंबर 4 पे. CNU लाइन नंबर 4 इक्वल एंटर 2 नंबर्स रीड AV. अरे यहाँ 4 आ गया, should be $A plus $B AVG is equal to EXPR. यहाँ पर कोड्स ठीक है. $sum divided by 2 and print the average as AVG. SH AVG. 2 numbers 4 syntax error. Print average $AVG. SH AVG. Syntax error after this. Print average. अच्छा 2 नंबर्स एंटर करने हैं ना, स्पेस देकर किया है ना, इसे स्पेस देकर 2 नंबर एंटर करने हैं. SH AVG 1 space 4 space 2. Average is 4 plus 2 divided by 2 is 6. स्पेस देकर हमने रीड किया है ना, स्पेस देकर एंटर भी करना है. यहाँ हमने स्पेस देकर रीड किया है, इसे स्पेस देकर एंटर करना है. अगर हम इसको रीड भी कर देते तो हमको एंटर करके वैल्यू को रीड करना है. 4 average is 4 plus 2 divided by 2. 4 plus 2 6. 6 divided by 2 is 3. So now we have seen 3 programs. ठीक है, 3 प्रोग्राम्स देखे. तो कल और परसों कल थोड़ा सा और देखेंगे और फिर हम लूपिंग भी बताऊंगी मैं, इसका इफ कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगी. इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग रहती है, तो इसके ऊपर आपको प्रोग्राम आ सकता है. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड. लाइनक्स का शेल स्क्रिप्ट दिया होगा और उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे. ठीक है, चलो. नाउ आई एम क्लोजिंग टुडेस सेशन.